Hello coders, welcome to the second video of the two-part video series, The Kickstart to Competitive Programming. If you haven't seen the first video, click on the I button or the link in the description to see the video. In this second part, we will discuss about various competitive programming or coding platforms that you can practice and apply your DS Algo knowledge and many websites to learn DSA concepts with tutorials. Not only this, but we will also discuss how important CP is for job or internship interviews. So let's get started. Let's talk about the main part, that is program some of the programming contents which will help you to land in your dream job. Or first is SCM ICPC. I know you all know the full form of SCM right now. So it's a world's biggest competitive programming contest, which consists of a team in which three members are only allowed in the team, and it's worldwide. So it consists in 4 rounds. First is online round, second is regional on-site round, and then continuous online round and world finals. So basically, what happened in this SCM ICPC is the some top teams from the colleges are selected for the regional rounds, and later on they are continuous and world finals. So if you want to do great in SCM ICPC, you have to first compete in the college itself, because in from a college there are very few teams are selected. The main aim of the SM ICPC is select the more colleges rather than the more. If you have a good ranking in the leaderboard, but still if your colleges students are upper from you, then you might have chance that you not go in the on-site rounds. Okay, so first talk about online round. Generally, it happens in the October, but right now there are no dates because of this pandemic. So it is basically 3 hour question in which you have provided 7 to 9 problems. And in India, it is basically conducted by the CodeChap. On-site round in India, we have 4 regions: Amritapuri, Gwalior, Pune, then Kharagpur, and then Kanpur. So basically, you can select at most 2 regions in the form. You have to fill the form, and when you can select any of the two or one region from that, and you have to qualify for that by the online round. And if your team is selected for the on-site round, then you will have to go to these 4 regionals and represent your teams. If your team secure the first rank, then you are directly promoted to the world finals. Then you have don't go to the continental. So okay, suppose if your team is not first, but then you have to go in continent part. In India comes under the Asia West continent, where 4 countries and around 100 teams will qualify for Asia West continent contest. The world finals will be a great honor if you will participate in world final. It is not easy to participate in world finals because only the red coders are selected for the world finals. You have to with good rating and all this stuff to reach to world finals. And most important is in ICPC you have to select the team. All your select team should be with the specific goals to you, same as you. So it is a similar. Google Code Jam and Facebook Hacker are some similar concepts are there. Like first they have the qualification round, then round one, round two. In Google Code Jam, in round two, they are top 1000 will qualify to round three only. And later on in round three, top 25 will be qualified to world finals. This year, the world finals were conducted virtually, but it's mainly conducted in USA, in the headquarters of Google. And you get Google if you perform very good in Google Code Jam. Next is Google Hotspot. It is also a team member. So you can form a team of up to 2 to 4 will. Then it has 2 rounds. One is qualification round only, in which some top teams are selected for the world final. But
Interesting part in HASH code is you are given only one or two problems. The problems are optimization problem. They are NP hard and NP complete questions are there. There no specific algorithm is right now for the question exists. So you have to provide some greedy and optimization technique so that you get the maximum marks for that, and you are selected for world final. So in world final also you will be given the optimization problems. Okay. Next is Google Kickstart. It is a best way to get a chance for interview with Google. If you perform good in the Kickstart, you can assume that you will get a call for interview from Google. But it is 8 times in a year. You in 8 is for that in the whole world. There are you can participate in which contest you want to do, because sometimes the time is not in the your daily life, like in night or have these times. So this is basically 3 hour contest. Or question in contest is generally asked in Google Kickstart. Sometimes 3 questions were also asked. Yes. And last one is Facebook Hacker Cup. So it is Facebook's annual open programming contest is there. It's similar to CodeJam here, different round in the competition. But fun fact about the Hacker Cup is they don't have their own ID, so that they judge you. They given a sample input, set of all the input data. You have to run this on your local machine and provide the output file within the 6 minutes. Then you cannot, if your 6 minute time period is over, you cannot submit the solution to the Hacker Cup. What we have seen so far is CP क्या है, क्यों करते हैं, अलग अलग DS algos सीखने के रिसोर्सेज एंड एनुअल कोडिंग कॉम्पिटिशन जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. बट जो लास्ट के 2 पॉइंट्स थे, कुछ डेटा स्ट्रक्चर सीखना और एनुअल कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना, उसका जो बीच का पॉइंट है, जो बीच का पार्ट है, दैट इज रेगुलर ग्राइंडिंग. तो वो रेगुलर ग्राइंडिंग इन वेबसाइट पे होती है. तो आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के करियर के अलग अलग स्टेप्स पे आपको इनमें से अलग अलग वेबसाइट यूज करनी है. लाइक यू विल स्टार्ट विथ हैकरर्स. हैकरर्स और हैकररैंक ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही हैं, बट वी विल प्रेफर हैकरर्स क्योंकि वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और उसके बहुत ज्यादा डाइवर्स क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करने के लिए. हैकरर्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करने से. उसमें आपको कोडमॉन्ग करके एक पार्ट मिलेगा जिसमें आप सारे टॉपिक्स के इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉर्टेड बाय डिफिकल्टी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, वंस आपने वो कर लिया, आपको वो ग्रिप आ गई, देन हैकरर्स के 2 अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं, दैट इज मंथली इजी एंड सर्किट. वो दोनों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इजी है एक शॉर्ट कॉन्टेस्ट 3 आवर्स का, और सर्किट है एक लॉन्ग कॉन्टेस्ट जो कुछ दिनों तक चलता है, जिसमें आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट कर सकते हैं. बट हैकरर्स की रेटिंग कोई नहीं देखता, तो कॉन्टेस्ट रेटिंग्स के लिए मत देना इसके. ठीक है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके रेटिंग. और उसके बाद जब आप टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हैकरर्स या हैकररैंक जो भी आपको पसंद हो, देन हम आते हैं कॉन्टेस्ट पे. कॉन्टेस्ट के लिए 3 वेबसाइट्स हैं, कोडशेफ, कोडफोर्सेस एंड एडकोड. कोडशेफ ऐसी वेबसाइट है जिसपे मंथली 3 कॉन्टेस्ट होते हैं, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग. 2 शॉर्ट होते हैं कुक ऑफ एंड लंच टाइम. तो इसमें आप पार्टिसिपेट करके रेटिंग्स बढ़ा सकते हैं. कोडशेफ की रेटिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लोग मतलब रेज्यूमे में लिखने में काम आती है. एंड हाँ, और जो इसका लॉन्ग चैलेंज होता है, दैट इज द लॉन्ग कॉन्टेस्ट ऑफ 10 days दैट यू कैन यूज फॉर रियल लर्निंग प्रोसेस. उसमें आप ट्राई करिए, लाइक 10 days तक आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग अप्रोचेस ट्राई करने का एंड ऑल, एंड प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल.
इसमें इसके लॉन्ग चैलेंज में एक ये भी प्रॉब्लम है कि आपको टेलीग्राम पे इसके सोल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो मत करिएगा, वो करने का कोई फायदा नहीं है। एडकोडर एक वेबसाइट है जिससे, जैसे जितेंद्र ने बताया, इसका सबसे फेमस कॉन्टेस्ट है डीपी का, जिसमें कुछ 26 प्रॉब्लम्स है। अगर आपको अपनी डीपी स्किल्स अच्छी करनी है, सॉल्व दीज 26 प्रॉब्लम्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके कॉन्टेस्ट अच्छे होते हैं, बट जरूरी नहीं है अटेंड करना। अगर आपको एज अ स्पोर्ट प्रोग्रामर इच्छा है तो कर सकते हैं, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इन सब के बाद जो वेबसाइट है वो है कोड फोर्सेस, ठीक है। कोड फोर्सेस एक ऐसी वेबसाइट जो है बाहुबली, कालीन भैया ऑफ ऑल दीज वेबसाइट्स, ठीक है। इवन अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स को गूज बम्स आते हैं ये वेबसाइट पे कॉन्टेस्ट देने के बाद। इसकी रेटिंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसमें 3 टाइप्स के कॉन्टेस्ट होते हैं बेस्ड ऑन व्हाट रेटिंग यू आर एट राइट नाउ। डिवीजन 1 दैट इज सबसे टफेस्ट कॉन्टेस्ट, डिवीजन 2 इंटरमीडिएट 1 एंड डिवीजन 3 द इजीएस्ट 1। ये सारे मैक्स टू मैक्स 2.5 आवर्स के कॉन्टेस्ट होते हैं, सारे शॉर्ट होते हैं, एंड इसकी रेटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको कोड फोर्सेस के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, कॉन्टेस्ट के बाद अप सॉल्विंग अच्छी रखनी पड़ेगी एंड ऑल, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बारी आती है लीड कोड। लीड कोड इन सबसे अलग है। लीड कोड इज ओनली बेस्ड ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ different difficulty levels, different frequencies of them to appear in interviews, and on basis of, you can even sort them on the basis of companies, but वो फीचर फ्री में नहीं है, उसके लिए आपको प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। हाँ, दिस इज ओनली बेस्ड फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। जब आपके रेटिंग मेंटेन हो जाए ये कॉन्टेस्ट वाली वेबसाइट पे, एंड आपकी अच्छी खासी ग्राइंडिंग हो चुकी हो, एंड आपके इंटरव्यू में 4-5 महीने बचे हों, देन यू कैन स्टार्ट विद लीड कोड एंड यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन बेस ऑफ different difficulty levels and companies. Okay, so the next part is interviews 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। आपको मैंने जो पिछले स्लाइड में जितनी वेबसाइट्स बताई उनके फायदे भी मैं इसी स्लाइड में बता दूंगी, आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू में वो कितनी काम आती है। इंटरव्यू 2 टाइप के होते हैं, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस के कोडिंग राउंड समझ लो सिमिलर है, बट ऑफ कैंपस में जो कोडिंग के अलावा स्किल्स चाहिए वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑफ कैंपस में क्या है कि यू हैव टू अटैच एन रेफरेंस इन ऑर्डर टू गेट एन इंटरव्यू, ठीक है। कुछ लोग इस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटैच एन रेफरेंस। और कुछ लोगों को शायद ना पता हो रेफरल क्या होता है। तो रेफरल ऐसी चीज है जो आपको उस जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एम्प्लॉय आपको देता है, लाइक ही इज रेफरिंग यू फॉर दैट पोजीशन, ही थिंक्स दैट यू कैन बी अ गुड मैच फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो रेफरल लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाइंग विदाउट रेफरल एंड नॉट अप्लाइंग एट ऑल आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। रेफरल कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। रेफरल लेने के लिए आपको लिंक्डइन का सर्च बार बहुत अच्छा है इस चीज के लिए। लिंक्डइन के सर्च बार में आप उस कंपनी के एम्प्लॉयज को ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको गूगल का रेफरल चाहिए तो आप गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ढूंढ सकते हैं लिंक्डइन पे, एंड उनको आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में भी क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट उनको आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, एंड देन you will get an referral if he thinks that you are good match for that particular position. Okay, so yeah, तो रेफरल लेना कितना मुश्किल है वो मैं
आपको एक एक्सपीरियंस से बताती हूँ। एफबी के रेफरल के लिए मैंने 50+ लोगों को लिंक्डइन पे टेक्स्ट किया था एंड उसके बाद भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये आसान काम नहीं है। रेफरल लेने के लिए आपको उनको कुछ टेक्स्ट भेजना हो या आपका रेज्यूमे अटैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स के पास ज्यादा कुछ लिखने को नहीं होता रेज्यूमे में। ठीक है, तो इसके लिए वो वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है कि जो जितेंद्र ने बताया, अलग अलग कोडिंग कॉन्टेस्ट करना एंड उसके आप रैंकिंग लिख सकते हैं उसमें। एंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपकी रेटिंग। यहाँ आपकी कोड फोर्सेस और कोडशिप की रेटिंग बहुत कम आती है। आपकी अगर कोई एम्प्लॉयर देखता है कि आपका कोड फोर्सेस पे आप एक्सपर्ट रेटेड या कैंडिडेट मास्टर रेटेड कोडर हैं, then he'll choose you over other candidates, obviously, right? So हाँ, रेफरल में आपको रेफरल लेने के लिए ये सब किसी एम्प्लॉय को टेक्स्ट करना पड़ेगा जिस कंपनीज के आपको चाहिए। ये रेफरल वाला केस मोस्टली होता है जो हम बोलते हैं ना ऑफ कैंपस की स्पैन कंपनी, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। बाकी कंपनीज में आई डोंट नो कितना इम्पोर्टेंट होगा, बट इन कंपनीज में आप बिना रेफरल के नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपको रेफरल में एक टेस्ट और अपना रेज्यूमे अटैच करना है। रेज्यूमे के बारे में भी मैंने बताया दैट व्हाट ऑल एंड ठीक है। अब ये रेफरल के बाद आपकी जो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होती है ना, उसमें भी आपकी रेटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइक someone with good rating will get shortlisted before someone who has not good rating, right? तो हाँ, उस बेसिस पे भी इसलिए भी रेटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस पार्ट के शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यूज में ये है कि यहाँ हमारा लीड कोड काम आता है। मैंने लीड कोड को अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन वेबसाइट बोला, क्यों? क्योंकि ठीक है, मैं आपको स्टैट्स देती हूँ। मैंने आज तक 6 इंटरव्यूज दिए हैं एंड दैट टू इन डीशो एंड गूगल, जिनके इंटरव्यूज काफी अच्छे माने जाते हैं, लाइक क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, राइट? तो अराउंड 12 क्वेश्चंस मुझे पूछे गए होंगे 6 के 6 इंटरव्यूज को इंक्लूड करके, जिसमें से 4 मैंने एक्सेप्टेड सॉल्व किए थे लीड कोड पे। और इंटरव्यू में आपका ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आना शायद आपको अभी नहीं पता होगा, बट आगे जाके आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी बात होती है। लाइक इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा एंड यू नो ऑलरेडी कि क्या बताना है, कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज बतानी है, कौन सा ऑप्टिमल अप्रोच है। और मैं अभी उन क्वेश्चन की तो बात कर ही नहीं रही जो मैंने पहले कहीं सुने थे लीड कोड पे या देखे थे, राइट? तो हाँ, ये बहुत ज्यादा लीड कोड इसलिए काम आता है। एंड लीड कोड का एक डिस्कशन फोरम होता है। लीड कोड के क्वेश्चंस के अलावा वहाँ लोग अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एंड पूरी प्रोसेस शेयर करते हैं। तो वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ना, वो बिना पढ़े आपको नहीं पता चलेगा कि क्या चल रहा है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। ओके, तो वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आप पढ़ते रहिए। और जैसे अमेजॉन, गूगल, ये सब की खुद की वेबसाइट्स होती हैं, करियर वेबसाइट, जहाँ ये लोग लिंक पोस्ट करते रहते हैं, नई ओपनिंग एंड ऑल। तो वो आपको रेगुलरली नेक्स्ट ईयर से, अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर से जब इंटर्न सीजन आएगा तब से आपको रेगुलरली चेक करनी पड़ेंगी, लाइक कौन सी नई ओपनिंग्स आई हैं एंड देन उसके रेफरेंस के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करना। सो दैट इज ऑफ कैंपस इंटरव्यू प्रोसेस, होल ऑफ कैंपस इंटरव्यू प्रोसेस। ऑन कैंपस में भी बस वो रेफरल वाला पार्ट हट जाता है, आपको सीजी मेंटेन करना पड़ता है मैक्स टू मैक्स रेफरल वाला पार्ट हटा के। एंड प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होती है, हर कंपनी का अलग अलग आगे का प्रोसेस होगा, नो डाउट। कोडिंग इंटरव्यूज डीशॉ के अलग होते हैं, क्रेडिट स्यूज के अलग होते हैं, यूश बैंक के अलग होते हैं, तो वो अलग होंगे। बट ठीक है, ये दिस पार्ट रिमेन
कांस्टेंट कि आपको अच्छी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आनी चाहिए टू गेट प्लेस इन some good company. Yeah, so that was it from my part.